Hello students, how are you all? Myself Sangeeta Jain, representing Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Students, today we will revise chapter 4 fractions, addition, subtraction and chapter 10 profit, loss and unitary method. First we will revise chapter 4 addition and subtraction. Students, you know about fractions. Fraction is a part of a whole or a collection. Fraction is also a number like natural number, whole number. इसी तरह से when we write any number in the p upon q form and q is not equals to 0, then this number is called a fraction. This is a fraction. Now in this p upon q, so this is the numerator and this is the denominator. Students, when we write any number above the line, it is called numerator and below the line it is called numerator. Suppose we have 3 upon 8. So 3 is a numerator and 8 is denominator. You know about it. Now we will discuss what is equivalent fraction. Equivalent fraction have same value and represent same part of a whole. Means if we have 1 upon 2 is equals to 2 upon 4. So these two values, these two fractions represent the same value. कैसे कि आपने एक चपाती लिया, 2 equal half में आपने divide किया and you take only one part means half part means 2 में से आपने कितना part लिया है यहाँ पर 1 part लिया है and same we have one chapati and we divide this into equal 4 parts and we take 2 parts. It is also represent half means both are the equal, both parts have the same value, so these are the equivalent fraction. Now students, we have some types of fractions like fractions, unlike fractions, proper fractions, improper fractions, unit fractions, mixed fractions. You know about it, you already learned about in previous class also. So what is types of fractions? Types of fractions means first is like fraction. Like fraction, fractions which have same denominator. ऐसे fractions जिनका denominator क्या होगा, सेम होगा, वो लाइक फ्रैक्शन होगा. जैसे 2 upon 5, 7 upon 5, 8 upon 5, इन सभी में जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है. सो इट इज लाइक फ्रैक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 3 upon 5, 8 upon 7, 9 upon 12. So all fractions have different denominators, so these are unlike fractions. And next is proper fraction. In proper fraction, numerator is always less than denominator. Numerator हमेशा छोटा होगा denominator से. For example 3 upon 8, 7 upon 9. In both the fractions we have small numerator. 3 is smaller than 8 and 7 is smaller than 9. So this is proper fraction. Next type of fraction is improper fraction. In improper fraction, we have numerator is always greater than denominator. कि numerator हमेशा denominator से क्या होगा, बड़ा होगा. For example 12 upon 5, 7 upon 2, 9 upon 3. These are improper fractions because all these fractions have numerator greater. Understood? After that, unit fraction. Unit fraction means fraction which have 1 as a numerator. ऐसे fraction जिसमें क्या होंगे, जो numerator है वो 1 होना चाहिए, तो वो आपका unit fraction होगा. Unit fraction. Unit fraction is also a proper fraction. Only 1 upon 1 is a improper fraction which have value 1 and always proper fraction is less than
1। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यूज होती है इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1 होती है। अंडरस्टूड। एंड लास्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। नेम से पता चल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो कौन से टू फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। अब होल नंबर, सपोज वी राइट 3 1/2। 3 इज अ होल नंबर। 3 क्या हो गया यहाँ पर? होल नंबर। और 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। Understood? So these are the types of fractions. Now students, how we convert fraction, proper fraction to improper fraction and improper fraction to mixed fraction. आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। You already learned in class 4th। जब आपके पास में improper fraction है, सपोज वी हैव 17/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? यू डिवाइड 17/5। 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, माइनस किया आपने, इट इज 2। तो आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? यू राइट first quotient, after that remainder in the numerator, and in the denominator you write divisor. So divisor is 5 here, quotient is 3, divisor is 5 and remainder is 2. So this is the mixed fraction of 17/5. Understood? How we convert improper fraction to mixed fraction? अब मिक्स फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट टाइम व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना है, ये जो आपका डिवाइजर है, अंडरस्टूड, डिवाइजर मीन्स डिनोमिनेटर, इसको आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मीन्स डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड बाय या डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, प्लस क्या कर देंगे आप? रिमाइंडर को। और जो डिनोमिनेटर में नंबर है यू राइट एज इट इज। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है यू राइट एज इट इज। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 5 इज मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, दिस इज 3, प्लस आप क्या करोगे? रिमाइंडर को, दैट इज 2, और जो आपका डिनोमिनेटर है यू राइट एज इट इज। क्या हो जाएगा ये? 5 3 15 प्लस 2 17/5। लुक हियर, ये भी 17/5 है, 17/5। Understood? How we convert improper to mixed fraction and mixed fraction to improper fraction. Hope you understood this. Fractions, about fractions. Now students, how we compare the fractions? Like fractions में जो comparison आप करते हो, कैसे करते हो? In a like fraction we have same denominator. Denominator आपका same होगा, तो you compare their numerators. आप किसको compare करोगे? Numerators को। If numerator is greater than the fraction is greater. How we compare? Comparison of like fraction. Friends, if you have, we take one question from exercise 4.2. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हम एक्सरसाइज 4.2 का ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, डी पार्ट। 15/94, 72/94, 43/94, 38/94 and 56/94. We want to arrange these numbers in ascending order. कौन से ऑर्डर में आपको करना है? असेंडिंग ऑर्डर में।
अब कैसे करोगे इसको? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया था कि इफ वी हैव लाइक फ्रैक्शंस वी कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम इन लाइक फ्रैक्शंस। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। अब इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर करोगे। तो यू कंपेयर 15 इज स्मॉलर देन विच नंबर? 38 is smaller than 43, is smaller than 56, is smaller than 72. It means 72 is the greatest number. Now write like fractions. 15 upon 94 is less than 38 upon 94, is less than 43 upon 94, is less than 56 upon 94, is less than 72 upon 94. अंडरस्टूड? आपने क्या किया? लाइक फ्रैक्शंस हैं तो फर्स्ट वी कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स एंड आफ्टर दैट वी कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अंडरस्टूड? एंड व्हेन वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे? वी हैव टू मेथड्स टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज एलसीएम मेथड एंड सेकंड इज cross multiplication method. Comparison of unlike fractions. Unlike fractions में suppose we take one question from exercise 4.1. 4 2 upon 7 and 4 3 by 5. These are in mixed fraction. This is question number 1 from exercise 4.1 and this is F part. आपको कंपेयर करना है, ठीक है, बाय एलसीएम मेथड. एलसीएम मेथड से आप कैसे कंपेयर करोगे? फर्स्ट वी कन्वर्ट दीज टू फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस क्या कर दोगे इसमें? रिमाइंडर सॉरी न्यूमरेटर को. तो क्या हो जाएगा? 4 7 28 प्लस 2 30 अपॉन 7 एंड सेकेंड नंबर इज 5 4 20 प्लस 3 23 अपॉन 5. अब आपको क्या करना है? दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, क्योंकि हमें क्या करना है? इनको फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, आफ्टर दैट वी कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स. अंडरस्टूड? तो आप इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लोगे. 7 और 5 का एलसीएम लेंगे. मैंने आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि व्हेन वी हैव को प्राइम नंबर्स वी डायरेक्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स. तो वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू भी इनको क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं. यू नो अबाउट इट एंड मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स. 5 into 7 is equals to 35. Now convert into like fraction. 30 upon 7 is multiplied by 5 by 5. आपको पता है कि जो फैक्टर यहाँ पर है these are the factors of the 35. तो 35 लाने के लिए आप क्या करोगे? वी हैव 7 तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रिमेनिंग फैक्टर से. तो ये 5 है तो आप मल्टीप्लाई कर दो आप 30 को 5 से. दिस इज 150 एंड अपॉन 35. सेकेंड फ्रैक्शन इज 23 अपॉन 5. तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से. 7 3s are 21, 2 कैरी ओवर, 7 2s are 14 प्लस 2 16 अपॉन 35. अब देखो आप यहाँ पर दीज आर टू फ्रैक्शन विच आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन है ये. तो अब आप इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे. सो 150 इज लेस देन 161. सो 150 अपॉन 35 is less than 161 upon 35. And now you write original fraction.
ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 30/7 इज लेस देन 23/5 and write in mixed fraction now this is 4/2/7 is less than 4/3/5। तो क्या किया आपने पहले अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, जब आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट you take LCM of the denominators and then we convert into like fractions. After that we compare their numerators and you write ordinal fractions. Understood? Now students, by cross multiplication क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे करेंगे, we have two fractions, आपके पास में two fractions हैं, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 जी पार्ट 4/7 एंड 6/13 वी हैव टू फ्रैक्शंस एंड बोथ आर मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना मीन्स आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे, मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड? तो आपने क्या करना है, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना हो जाएगा ये 52 और 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, दिस इज ऑल्सो 42। सो बोथ आर डिफरेंट, आपको सेम ऑर्डर में ही करना है, ऐसा नहीं कि आपने इसको यहाँ ले आए और इसको इधर ले आए, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस न्यूमरेटर के पास में ही इस वाले दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लेकर के जाना है और इसी तरह से यहाँ पर आपको इस सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास में ही फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लेकर के जाना है। अंडरस्टूड? ऑर्डर का आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 52 इज ग्रेटर देन 42 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके साथ में फ्रैक्शन कौन सा था, ये वाला, तो 4/7 इज ग्रेटर देन 6/13। अंडरस्टूड? हाउ वी कंपेयर two fractions by cross multiplication method? Now students, when we have unlike fraction with same numerators, unlike fractions हो आपके लेकिन आपका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तो आप क्या करोगे, we take one question from exercise 4.2 question exercise question number 3, A part 9/3, 9/5, 9/2, 9/7, 9/4 एंड 9/6। अब आपके पास में जब न्यूमरेटर सेम है, दैट टाइम व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप, वी कंपेयर देयर डिनोमिनेटर्स, हम इनके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन इज स्मॉलर, उल्टा होगा इसमें, ठीक है, कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यदि छोटा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अंडरस्टूड? कब, जब आपके न्यूमरेटर सेम होंगे एंड दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। कौन से हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो अब आपको सपोज ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यू वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट टाइम व्हाट यू विल डू, मैंने अभी आपको बताया, व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन इज ग्रेटर,
तो अब असेंडिंग में करना है तो स्मॉलर टू ग्रेटर करेंगे हम। तो आप क्या करोगे, यस, नाउ 7 इज ग्रेटर देन 6 is greater than 5 is greater than 4 is greater than 3 is greater than 2. Now compare their denominators. After that you compare their fractions. So 9/7 is less than, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा और आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। So 9/7 is less than, 9/6 is less than, 9/5 is less than, 9/4 is less than, 9/3 is less than 9/2. Understood? Now students, addition and subtraction of fractions. Addition and subtraction of fraction. When we have like fractions, तो आपको क्या करना है, like fraction होंगे तो you add simply their numerators and you write denominator as it is. Exercise 4.3, question number 1, A part. Question number 1, A part. 41 upon 53 and 15 upon 53 ऐड करना है आपको। सिंपल एडिशन है तो क्या करोगे आप, 41 अपॉन 53 प्लस 15 अपॉन 53, इक्वल का साइन, यू पुट इक्वल साइन हियर। सेम लाइक फ्रैक्शंस है, यू राइट डिनोमिनेटर एज इट इज एंड ऐड देयर न्यूमरेटर्स। इनके न्यूमरेटर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5 + 1 6 एंड 4 + 1 5, 56 अपॉन 53। इफ वी हैव और आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, यू कैंसिल आउट, आफ्टर दैट यू कन्वर्ट इन लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर तो क्या होगा, 53 और 56 किसी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई ये, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, बोथ आर सेम। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे नंबर्स को, सेम लाइक फ्रैक्शंस में तो सेम मेथड है कि इफ वी हैव लाइक फ्रैक्शंस देन सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर्स एंड यू राइट डिनोमिनेटर एज इट इज। अंडरस्टूड? और आपके पास में यदि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, C part, 7 upon 15 and सब्ट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पर 13 upon 20 से। तो कैसे करोगे, फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। फ्रॉम के बाद वाला नंबर बड़ा होता है हमेशा, तो यू राइट 13 upon 20 minus 7 upon 15। अंडरस्टूड? टेक एलसीएम टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। 20 और 15 का एलसीएम लोगे आप, ठीक है। 2 से किया आपने 10, 15 अगेन 2 से किया आपने 2 5 सा, देन 3 से एलसीएम आता है आपको लेना, 5 से किया आपने 1 1। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, 2 is multiplied by 2 is multiplied by 3 is multiplied by 5, 2 2 सा 4, 3 सा 12, 5 सा 60। तो क्या आ गया आपके पास में एलसीएम 60। दिस इज द कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। 13 upon 20 is multiplied by 3/3. This is 39 upon 60 and second fraction is 7 upon 15. Now multiplied by 60 के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। This is 28 upon 60. These two like fractions. Now subtract these two like fractions. 39 upon 60 minus 28 upon 60. क्या हो जाएगा यहाँ पर, 39 माइनस 28 अपॉन 60। सेम मैथड है जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ 11 अपॉन 60, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सम प्रॉपर्टीज
ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शंस, सेम प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो एडिशन में होती है। व्हेन वी ऐड 0 इन एनी फ्रैक्शन वी गेट नंबर इटसेल्फ, मीन्स किसी भी फ्रैक्शन में जब हम 0 को प्लस करते हैं तो हमें सेम फ्रैक्शन मिलता है। और इसी तरह से व्हेन वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस इन एडिशन, फ्रैक्शन का जब हम एडिशन करते हैं प्लस करते हैं उनको तो हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट नंबर इटसेल्फ। तो प्रॉपर्टीज आपकी जो एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की है तो सेम प्रॉपर्टीज है। वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.4। 4.4 का जो है क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लुक हियर, सपोज वी हैव 95 अपॉन 460 प्लस 33 अपॉन 103। तो मैंने अभी आपको बताया कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। तो आप क्या करोगे, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन फ्रैक्शंस। सो 33 अपॉन 103 प्लस 95 अपॉन 460। इसी तरह से यदि आपके पास में ये है यहाँ पर 9 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5 नाउ इज इक्वल्स टू प्लस 9 अपॉन 7, व्हाट यू विल डू, क्या आएगा यहाँ पर 3 अपॉन 5। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी ऐड होल नंबर एंड फ्रैक्शंस, हम कैसे उनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। 9 माइनस 3 अपॉन 5, टेक एलसीएम। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ टेक एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। सो यू मल्टीप्लाई दिस नंबर डायरेक्टली 5, कितना हो जाएगा 9 5 सा 45 अपॉन 5 माइनस 3 upon 5. Now it converts into like fraction, write common denominator and this is 45 minus 3 is equals to 42 upon 5. This is the subtraction of whole number and fraction. From exercise 4.5, question number first B part of this. How we simplify like fractions when two signs are together. Exercise 5.4.5. Question number 1, B part is 8 upon 11 minus 3 upon 11 plus 5 upon 11. We have two signs together, यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी है, but these are like fraction. So first we write common denominator, this is 11. Now we write 8 minus 3 plus 5. According to BODMAS rule, first we add the numbers. तो एडिशन में यहाँ पर क्या है 8 और 5 है. So you rearrange the numbers like that. After that you add these two numbers, 13 minus 3 upon 11 and then get final answer 13, 3 minus 3 0 and this is 1, 10 upon 11. Understood students how we simplify these like fractions? आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. और same method we use when we have more than one fractions, more than two fractions in addition or subtraction. तो आप क्या करोगे, अनलाइक फ्रैक्शंस है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, आफ्टर दैट यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6. नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6. Ramesh ordered 11 by 12 kilogram of wood and used 5 upon 12 kilogram of for making a piece of furniture.
हाउ मच वुड इज रमेश लेफ्ट विथ, क्या करेंगे हम इसके अंदर कि उसके पास में रमेश ने ऑर्डर कितनी वुड का दिया है, 11 बाय 12 किलोग्राम वुड का, अंडरस्टूड, एंड यूज्ड वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर इज 5 upon 12 kilogram of wood. Now how much wood is left, how much wood is left with Ramesh, क्या करेंगे हम इसमें, solution is टोटल जितनी वुड है उसके पास में उसमें से जो यूज्ड वुड है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है कि टोटल जितना आपके पास में है उसमें से यदि जितना हम यूज कर लेते हैं तो कितना बचेगा, तो आप माइनस करोगे कि कितना आपके पास में रहेगा कोई भी चीज। तो हाउ वी राइट द स्टेटमेंट्स, वुड ऑर्डर्ड बाय रमेश, ऑर्डर्ड बाय रमेश इज इक्वल्स टू 11 बाय 12 किलोग्राम। इट इज कंपल्सरी टू राइट द यूनिट, यूनिट को लिखना जरूरी है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज वुड यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, वुड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, कितनी वुड यूज की है उसने, 5 upon 12 kilogram. Now wood left with Ramesh, wood left with Ramesh, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे, टोटल वुड में से आपको माइनस क्या करना है, यूज वुड को, यूनिट कौन सा आएगा आपका, किलोग्राम। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो आप देखो इसमें 2 मेथड्स हैं, आप 11 होल नंबर में से होल नंबर को माइनस कर दो और जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो यू राइट कॉमन डिनोमिनेटर एंड 11 minus 5 is equals to 6 and then subtract, sorry, cancel out these 2 numbers, तो आपके पास में आ जाएगा 1/2 किलोग्राम। ऐसे भी कर सकते हैं और इनको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। सो फाइनली यू राइट देयरफॉर 1/2 किलोग्राम wood left with Ramesh. Hope you understood this chapter very well, students. Now we will revise chapter 10, profit, loss and unitary method.